You have spent more than 50 years looking for your husband, who you believe was taken prisoner of war after the 1971 war between India and Pakistan. जब हम लाहौर के जेल में पहली 2007 में जब गए और वहाँ पे जो लोगों की हालत देखी, वो देख के मेरे मन में एक बार ज़रूर ये ख्याल आया कि I wish he didn't have to live this long to go through this. Yeah. That smile on your face today, you have smiled through this conversation. Where does it come from? But खुशी इस चीज़ की है कि अगर मैंने शादी करी तो उस व्यक्ति से करी. जब आप उस फैक्ट को सोचते हैं कि मिसेस गांधी ने 93,000 पाकिस्तानी prisoners of war लौटा दिए and these 54 including your husband never came back home, that irony, how do you look at that irony? ताज्जुब होता है. 93 मतलब ये तो इंटरनेशनल फेलियर है मैं कहूँगी. You know, you were a very, very successful sportswoman. You were a 3-time national badminton champion. 6 times. Oh, I'm so sorry. 6 times. I stand corrected. An Arjuna awardee. You chose to give up all of this sporting excellence and devote your life to finding a man who was never found, whom you had been with for a little over a year. आपने कहा ना, something game that you sports that you loved. Obviously, I loved him more than the sport. मतलब ठीक है, मेरे लिए वो 1.5 साल भी जीवन काटने के लिए काफी साबित हो गए. Did you ever think that if I meet him, मैं सबसे पहले ये बात बोलूँगी? I would have given him a slap. Why did you go? I mean, you are the best advertisement for arranged marriages. बिल्कुल. You have spent more than 50 years looking for your husband, who you believe was taken prisoner of war after the 1971 war between India and Pakistan. Some people, Damayanti Tambay, would call that a tragic life. Others might call it a life of hardship. But to me, it seems like an extraordinary love story. Because after all, you spent more time looking for your husband than you actually spent with him. So tell us about your husband, the last day you saw him alive, what he said to you then as he left to join India's war efforts against Pakistan in 1971. Well, difficult to start from and start telling what I've gone through, very honestly. I'll answer the last question you raised first. That the last time I saw him was the 3rd of December 1971. And the war had broken out and we were posted in Ambala. And Ambala, the house we were living in, was in line with the runway. So when the war started, all I could see and hear the bombing, because our house was on the runway, probably the first 2 bombs were dropped on the airways, on the airport, on the airline, what do you call it? The track, the runway basically. And I ran out to see all the AK guns. I did not know what they were. And I thought, oh, ये आग के गोले कहाँ से गिरने वाले हैं, that kind of a feeling. But a few weeks before that, one had a feeling that something going to happen. And I did not have the nerves and guts to ask my husband, ये क्या हो रहा है? घर के side में, they were digging trenches for people like us who were going to be left behind to hide in the trenches should the war start. So that was that. He was on base ops duty that particular evening. And he had base ops duty basically was that for 24 hours he would be away. So he had come, packed his bag and gone for base ops duty. But he came back to say कि अब लड़ाई छिड़ने वाली है, so we must go and park our, we didn't have a covered parking. तो गाड़ी को जाके जो bachelor's quarters के हमारे garages हैं, let's go and put it there. And from then after that I'll have to go. So
गाड़ी में बैठ के डोंट हैव द लाइट्स ऑन, धीरे धीरे ड्राइव करके वी वेंट एंड पार्क द कार एंड जॉगिंग करते हुए बिकॉज ही हैड टू रश इमीडिएटली फॉर द दिस थिंग वी केम बैक होम एंड ही सेड मैं जा रहा हूँ, टेक केयर एंड हो सके तो घर चले जाना. व्हेन ही मेंट घर, माई पेरेंट्स हाउस. ऐसे नहीं आई विल वेट फॉर यू हियर. एंड ही एक्सप्लेन टू मी कि ट्रेंचेस हैं, अगर बैठना पड़ेगा तो मुंह में चम्मच लगा लेना, नहीं तो रुई रख लेना बिकॉज इट कुड बी डिफिकल्ट. जैमिंग हो जाती है, सम काइंड ऑफ अ थिंग, जॉज की जैमिंग हो जाती है अगर बॉम्ब्स गिरते हैं, इफ दे आर टू क्लोज. एंड जब बैठना तो काफ़ी नीचे होके बैठना सो दैट यू आर बिलो द ग्राउंड लेवल, कोई स्प्लिंटर भी हिट ना करे. आई टुक इट वेरी ईजी, ऐसा क्या होने वाला है, हैड नो आइडिया. एंड आई सेड हाँ आई टेक केयर, डोंट वरी, और जल्दी आ जाना. वो जल्दी तो आई नहीं अभी तक. बट एनी वे दैट इट्स द होल थिंग स्टार्टेड फ्रॉम देयर. आई वॉज देयर फॉर अबाउट 3 days बाय माई सेल्फ. ट्रेंच में ही ज़्यादातर टाइम गुजरा. ट्रेंचेस वर फ्रेशली डग, दे सॉइल वॉज सॉफ्ट, तो बड़े बड़े चींटे थे वहाँ पे. उन्हीं के बीच में आई टू बी सॉर्ट ऑफ, नीचे झुक जाओ फिर बैठ जाओ. यू वांटेड टू यूज वॉशरूम, यू फेल्ट लाइक हैविंग वाटर. मुंह पूरा टाइम सूखता रहता था, एज इट इज़ नाउ, जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. एंड इस तरह से 2-3 दिन कटे. फिर 3rd day आई गॉट, फिर मेरे को लगा अगर मुझे जाना है, मेरे कपड़े तो धोबी के पास हैं ऑफ ऑल द थिंग्स. आई थॉट लेट मी कलेक्ट दोज. सो मैंने किसी की साइकिल ली, वो जाके भी किया. फिर 3rd day मेरे को मैसेज आया, 2 people केम ऑन अ बाइसिकल टू से कि साहब ने कहा है कि आप घर चले जाओ. अच्छा. सो व्हेन दे सेड साहब ने कहा, आई थॉट विजय मस्ट हैव सेड कि घर चले जाओ. इट इज़ हिज मैसेज. अभी कैसे जाएं? I didn't have ticket. The car was not there. Even if I had the car, I couldn't have left the car there. बहरहाल पैक करके सब चीज़ को, and finally I packed a little bag for myself. And there was one train, कालका मेल, जो कालका से इलाहाबाद तक. I had to go to Allahabad. My parents lived there. कि मुझे वहाँ जाना है. That was the only direct train, and I would have caught that. वहाँ से मैंने अपने घर से बैग पैक करके I had to walk to the station. वो ज़माने नहीं थे कि कोई आपको उठा के स्टेशन पहुँचाता, कोई आपके लिए टिकट खरीदता. वन हैड टू फेंड फॉर वन सेल्फ टू राइट. ताला लगाया, चाबी रखी, और वो बैग लेके आई वॉकड फ्रॉम माई होम टू द स्टेशन विच वॉज ईजिली 2.5 kilometers. फिर स्टेशन जाके एवरीथिंग वॉज ब्लैकआउट था, तो गाड़ियाँ रुकती भी थी तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था. एंड 2-2.5 minute का स्टॉप होता था. सो गाड़ी चलने भी लगी, दरवाज़ा नहीं खोल रहा था. तो आई वॉज रनिंग विथ माई बैग एंड देन प्रॉब्ली वन TT सॉ कि शी प्रॉब्ली वॉन्ट्स टू गेट ऑन टू द ट्रेन एंड ही गॉट. एंड यू वर हाउ ओल्ड एट दिस पॉइंट? आई गॉट मैरिड व्हेन आई वॉज 22 and a half, 48, 22-23 साल की थी, जस्ट अबाउट दैट. तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई एंड somehow I got into the train, but the compartments were still not open. So I spent the night in the corridor near the bathroom. And सुबेरे when train reached Delhi, then I could get into the compartment. And वहाँ से फिर then I reached home and home was Allahabad. Home was Allahabad. And then one day or one night, आप रेडियो सुन रही हैं, and on the radio you hear an announcement that chills your bones. Tell us what you heard. This was the day I reached there, in fact. जिस समय मैं पहुंची, उस समय रेडियो ही चलता था. रेडियो ऑन करके जब सुना तो they were reading out a list of names जो पाकिस्तान का वो था ब्रॉडकास्ट. ये पाकिस्तान का रेडियो ब्रॉडकास्ट था. और आपने कैच कर लिया रेडियो? कैच कर लिया. I mean you just keep trying. Right. और उस पर कुछ नाम पढ़े जा रहे थे. और उस पर जो नाम पढ़े जा रहे थे उसमें आई हर्ड हिज नेम. और उनके पहले किसी एक और का था, एक्सक्यूज मी नाउ आई एम फॉरगेटिंग द अदर पीपल्स नेम्स. वो दैट पर्सन वाज आल्सो फ्रॉम आवर स्क्वाड्रन. तो उनके उसके बाद हिज नेम वाज रेड आउट. तो मैंने कहा कि ये क्यों पाकिस्तान रेडियो है, वो तो आप साउंड से बात करने के ढंग से समझ में आ गया. माई पेरेंट्स वर देयर. मगर ये नहीं समझ में आया कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दे आर रीडिंग आउट द नेम्स. सो मैंने सोचा कि ठीक है, मे बी ही इज़ अलाइव, ही हैज़ बीन कैप्चर्ड.
My first reaction was कि चलो अच्छा है, अब लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा. A selfish way of looking at it. कि अब लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा and कभी ना कभी तो he'll come back. That was my reaction basically. Why did you, for so many years, believe that your husband was alive? The people tried to tell you that we have reason to believe that, he was not able to bail out from his plane, it crashed. But you kept believing, along with the families of 53 others, so 54 in all, that your husband and others were alive and they were somewhere in a jail in Pakistan. Why did you believe that? A few reasons. One, I had heard this name. जब उन्होंने रेडियो पे पढ़ा उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था मुझे. बट आई थॉट व्हाई वुड पाकिस्तान read out names of anybody who are, let's say, how would they know that these are the people they don't go into the war with their names and all that. They don't. Correct. I suppose so. So उनको नाम कैसे पता चले इन लोगों के? नाम पता चले तो ये तो एक possibility तो है, even if it is a very small possibility, that they were caught alive and their names were asked. वो आप just for morale boosting, they could read out, say, हमने इतने लोगों को पकड़ा, ये लोग उनके नाम हैं. Number one. Number two, his name appeared in Pakistan Observer, a newspaper which was published from Bangladesh. And it says 5 pilots captured, on the front page, 5 pilots captured alive, and his name was there. Flight Lieutenant Tambay. Why? Because when we were in Ambala, he said, लड़ाई तो होगी. My name is Tambay, but if they catch me as Tambay, they will torture me much more. मेरे को एक आइडिया आया है, मैं उसको टॉम्बे कहूँगा अपना नाम. They might think I am a Christian of some sort. शायद इतना टॉर्चर नहीं करें. So then we had gone to convent in Ambala and we knew somebody there as a teacher. उनसे हमने मांग के nuns से लेके क्रॉस लिया था. Which he said I would be wearing that cross just in case this happened. पेपर में भी टॉम्बे ही कैसे निकला? तांबे भी निकल सकता था, कुछ भी निकल सकता था. I understand that it is always the wishful thinking that prevails over everything because you want to believe. But अगर आप believe भी नहीं करोगे तो आप तो कुछ investigate, कुछ कोशिश भी नहीं करोगे. So on that belief, that was one. Another day, after 2 days, somebody visited our house, parents' house. उनके brother army में काम करते. He was an army officer and he said, and we knew the family, कि मेरे भाई का फ़ोन आया and he has heard your husband's name, border पे उधर कहीं posting है, उन्होंने नाम सुना. So मेरे को लगा this is maybe the same that I heard about him or whatever. तो थोड़ी सी तसल्ली हुई कि भाई नाम मैंने अकेले ने नहीं सुना है या इमेजिन नहीं किया है, औरों ने भी सुना है. My father-in-law managed to get this newspaper जिसमें लिखा था captured alive. तो ये 2-3 चीज़ें थी और इसके ऊपर ही फिर हम पर आपकी पूरी लाइफ, now I want the audience to know that you were a very, very successful sportswoman. You were a 3-time national badminton champion. 6 times. Oh, I'm so sorry. 6 times. I stand corrected. An Arjuna awardee. And you had to, in a way, give up all that you had accomplished and all that you loved and devote. You didn't have to. You chose to. You chose to give up all of this sporting excellence and devote your life to finding a man who was never found, whom you had been with for a little over a year? Year and a half. A year and a half? What made you do it? आपने कहा ना, something game that you, sports that you loved. Obviously, I loved him more than the sport. That's why I said, to me, this is an extraordinary love story more than it's anything else. Somebody has come out with a documentary also, and he had also asked a similar question. And I'll just repeat what I told him. Yeah. That it is an unconditional love. Nothing else mattered to me more than that. And when people talk, I say, आप imagine करो, something you love somebody you love very much. उसके बाद आपके सामने
Sports हुआ क्या? Yes, music is an art which can give you solace and peace. But बाकी और क्या है? But badminton was your passion. You were excellent. And I thought 3 times, 6-time national champion, Arjuna Awardee. But nothing mattered once your husband went missing. Nothing. I never even missed playing. Very honestly. And I'm honest. Believe me. So what became the center of your life? Looking for him was one thing, but you have to get from day to day, day to day, day to day. हाँ वो तो चली जाता है किसी न किसी तक you find. I mean, right now I'm working for the War Widows Association. Yes. Fortunately, I had done my courses, sports courses, so I got a job in the Jawaharlal Nehru University as sports director there, and I worked for 43 years. तो जीवन कट जाता है, रुकता नहीं है. नहीं, पर जैसे आपने कहा, आप आज वॉर विडोज एसोसिएशन की हेड हैं, लेकिन आपने कभी अपने आप को विडो माना नहीं, क्योंकि आपने बिलीव किया. मुझे मालूम नहीं आज आप बिलीव क्या करती हैं, लेकिन आपने बहुत अरसे तक बिलीव किया दैट योर हस्बैंड इज अलाइव. डू यू बिलीव दैट टुडे? मैं ये बिलीव करती हूँ कि अब देखिए 50 साल के बाद जी एक रियलिस्टिक होना भी ज़रूरी है. जी ठीक है. अब मुझे लगता है अब तो पता नहीं थोड़े ही से साल बचे हैं, अब थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट आई विल बी ऑनेस्ट टू हिम एंड आई विल बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ. मेरे को कभी कुछ अट्रैक्शन कहीं कुछ नहीं लगा, किसी के प्रति नहीं लगा, इस थॉट के प्रति भी. You never thought of another relationship? Never. You were in your 20s. Age doesn't matter. Yes. When you love somebody, you care for somebody, and I knew how honest he. सब लोग कहते हैं अरे आप you loved him, you cared him, but I said the bigger fact is that he loved me more than I loved him. How could I be dishonest to a person? It's not, he said, उसने कहा था go home. ये लड़ाई तो हो गई, but one had not, I mean, we were married for 1.5 years, so you are not talking about war and all. The life had basically just started. But ठीक है, I mean, मेरे को कोई और लाइफ नहीं रही मेरी, इसका रिग्रेट नहीं है. मुझे केवल I would put it in a better way, I would have liked to spend my life with him. Yeah. वो नहीं हो पाया, God's will. सब कोई कहते हैं आपको भगवान से शिकायत नहीं है. मैंने कहा मुझे भगवान से भी शिकायत नहीं है. भगवान भी जो करते हैं कुछ सोच के करते हैं. मेरे हाथ पैर दिए हैं, चल फिर पा रही हूँ. आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ. आई वॉज नेवर डिपेंडेंट ऑन एनीबडी. अर्न माई लिविंग. पहले बहुत थोड़ी सी पेंशन थी, 300 और 400 और 500 में भी गुजारा हुआ. अब ज़्यादा भी हो गई है, बट आई हैव नो यूटिलिटी फॉर इट मोर और लेस नाउ. So I led a simple life, thinking of him. God keep him safe wherever he is. You didn't just think of him. You galvanized a community of people to look for him. They looked for their families. You went to Pakistan. I want you to talk now about that search. One was the conviction कि नहीं, ये लोग जिंदा हैं, ये लोग कहीं किसी जेल में हैं, और आप वहाँ गए, लेकिन आप जेलर्स से मिले, आप उसके आगे नहीं देख पाए. There was a suggestion that perhaps some of these prisoners may not be mentally stable anymore. Maybe they had been tortured. We don't know. It's all speculative. But there was one point when even the government of India believed that there were prisoners who were alive, and Parliament was informed accordingly. So I want you to talk about that trip to Pakistan and what you found. Before I talk about the trip, I'll tell you how and why all this happened. Yes. There were other cases where the evidences were far greater and more convincing. Major Suri's letter and 3 letters to his father. And the letter says, we are 20 officers here from Karachi. Number 1. Number 2, 2 more postal these things. When Major Suri's father went to the government, the government said, नहीं, ये आपने अपना ही लिख लिया होगा. I mean, the government did not believe. उनकी handwriting को match कराया गया officially. Then they agreed, yes, it is Major Suri's handwriting. So that was one.
Who were the other 20 people? We don't know. Right. इसी लड़ाई के लोग हैं, कोई भी हो सकता है. मेजर घोष's photograph appearing in Time magazine. Time magazine इंडिया में नहीं छपती है. Time magazine अमेरिका में छपती है. And there was another person standing behind Major Ghosh, which appeared to me when I saw the magazine that looked very much like my husband. ठीक है, हमने उस पर भी विश्वास किया. अगर गवर्नमेंट को विश्वास नहीं था, why did they no less than 25 to 30 times admit on the floor of the parliament, we believe they are there? And let me come to the latest. I sent an RTI to Defense Ministry and the External Affairs Ministry. I'm getting mixed up whether one or the other. They say... When? Very recently, less than 6 months. And I have the replies from them. Either the Defense Ministry or the External Affairs Ministry has replied, they continue to be in missing list on official records. Why are you keeping them? And despite that... You mean they have not officially been declared dead? No. Then why are their names in the war memorial list and in the killed in action? I have greater questions to ask the government. अब उनको आप नाम उनका killed in action में क्यों डाल रखा है? Now coming back to... तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, क्योंकि अगर मेमोरियल में नाम है किल्ड इन एक्शन लेकिन मिसिंग लिस्ट में भी नाम है, ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन... ये अच्छा नहीं लगता जी. बहुत देश ऐसे भी हैं, एटलीस्ट इन वॉशिंगटन आई हैव सीन, उनके मिसिंग इन एक्शन की सेपरेट वॉल है जी. हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए, नथिंग एल्स, एंड योर ओन रिकॉर्ड से दैट दे आर मिसिंग इन एक्शन, आप एक सेपरेट वॉल भी बना सकते हो, मिसिंग इन एक्शन की बना सकते हो, बिकॉज यू योरसेल्फ डू नॉट नो व्हाट द सिचुएशन इज. जी. ओके, गोइंग बैक टू द स्टोरी ऑफ क्यों हम लोगों ने किया. जब आप पार्लियामेंट में उसको एडमिट कर रहे हो, हम आपको एविडेंसेस दे रहे हैं कि आपके पास वो एविडेंसेस है, आपने क्या काम किया उनके ऊपर. Just to say, no, we are working on it, we are working on it. Either say we are not going to work on it, अब आप close the story. And for us, killed in action. We went to the court, we fought a case for 14 years. And then we won the case. Why? Because the government could not prove. Government ने क्या effort किए बरखा, tell me? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किए. And this is all governments. When you say government, ये तो आप कब से लड़ रही है? नहीं, हम तो शुरू के लिए उससे लड़ रहे हैं. हाँ. अब तो करने के लिए क्या बचा है? जब 2007 में आप हमको पाकिस्तान भेजोगे तो वहाँ की प्रेस हम पे हंसती है. क्यों? 71 के वॉर के बाद अब 2007 में अपने परिवार वालों को ढूंढने आए हो, क्या जवाब दें हम उनको? 83 में तो चलिए, देयर वर जस्ट फ्यू इयर्स हैड गॉन. 83 के बाद यू आर सेंडिंग, मुशर्रफ जी आए, हम लोग पीछे पड़े, सब हल्ला गुल्ला, हाँ जी आप आ जाओ, भेज दिया हमको आपने उठा के 15 लोगों को इन द पीक ऑफ समर्स. आपके कॉन्टैक्ट आपने डेवलप नहीं किए, क्या किया वी डोंट नो. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द टू गवर्नमेंट्स के क्या वो रिलेशंस हैं, मगर उसके बाद आपने एफर्ट क्या किए? आपने कुछ एफर्ट किए तो हमको तो बताया भी नहीं ना आप क्या कर रहे हैं. Why are you hiding from us? हम आपको evidences दे रहे हैं. How have you pursued those evidences? We would have wanted to know that. आपको कितनी बार, there were many instances which gave us to believe that some of these, और कोई भी होगा, कोई ना कोई है वहाँ. ओमान में एक केस हुआ where somebody was found and that person said कि during the war एक बोट में बैठा के, and this is with the government, हमको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया. एंड दैट पर्सन सेड हमारी वाइफ और घर वाले वहाँ पे हैं. अ कारपेंटर हैड गॉन टू ओमान बाय चांस, जैसे ये जाते हैं काम पाने के लिए. तो वहाँ पे जब वो गए तो उन्होंने कहा कि अरे आप पंजाब के हो. दैट पर्सन हैड सॉर्ट ऑफ फिजिकलिटी थोड़ी चेंज हो गई थी, टोपी वोपी वगैरह. सो बोले हाँ. तो कहने लगे ऐसे हमारे रिलेटिव्स हैं वहाँ पे. और उन्होंने बताया, उस आदमी ने लौट के आया, बताया कि हैं, बट व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट डन? मतलब एनी एविडेंस दैट वी हैव गिवन, हैज़ द गवर्नमेंट वर्कड ऑन इट? हमारी फॉल्ट वहाँ है. हमको 1983 में वी वर सेंट टू पाकिस्तान विद एन अंडरस्टैंडिंग, एंड आई वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम्स ऑफ द मिनिस्टर्स हु वर इन्वॉल्व बिकॉज इट डजंट बिहोव माई एज नाउ टू गिव आउट द नेम्स कि किसने किसने क्या क्या वादे किए, और कुछ भी नहीं वर्क हुआ उस पर.
कि आप लोग जाओगे, दे वुड बी इन नॉट वेरी गुड कंडीशन, मगर आप मिलोगे उनसे, दे वर मे बी अंडर द फॉल्स नेम्स, और वो आपको नाम आप जाके पहचानोगे, एंड देन दे वुड बी रिपैट्रिएटेड। उस ज़माने में इतनी पब्लिसिटी ये सब टीवी पे नहीं होता था, तो आप ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी मत करिएगा और आपको मिलेंगे। वी हैड अ फ्लाइट फ्रॉम इस लाहौर जाके इस्लामाबाद जाना था। लाहौर का पेपर में ही आता है, इंडिया गोज़ बैक ऑन इट्स वर्ड्स। वी वर सॉर्ट ऑफ वेटिंग टू टेक द कनेक्टिंग फ्लाइट, पेपर में पढ़ते हैं इंडिया गोज़ बैक ऑन इट्स वर्ड्स। वी वर टू शो देम 30 of their prisoners. अब exchange में whether they were defense prisoners or civil whatever, we were to show them 30 prisoners. जब पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आए तो उनको 3 हमने लौटाए। उन्होंने कहा what happened to the rest? कि जी वो 27 तो हम तो पहले ही भेज चुके हैं। We knew from that point itself that your trip was doomed. Yeah. And 2007 what happens? 2007 में भी हमारी 15 जनों की लिस्ट बनाई। हमने कहा कहाँ कहाँ जाना है, ये जगह पे हमारे को लगता है जाना है। I mean, if they are not going to allow us to go to the places where we would have liked to go, ये सब तैयारी तो सरकार को करनी है, हम थोड़ी कर सकते हैं। हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, आप जाओगे, आपको हमने कहा देखिए इतने सालों में पॉसिबिलिटी ये है, शक्ल बदल जाती है, मतलब I mean, did you ever think that suppose you'd seen your husband, what if I don't recognize him? हम तो रिकग्नाइज कर लेंगे, हमें मालूम था। हमें तो दूसरों के परिवार वालों को भी पहचानना था, वो भी जिम्मेवारियां हमको दी गई थी जी। तो हमने कहा हम उनको कैसे करेंगे, अपना तो पहचान लेंगे किसी तरह से जी। मगर जब वहाँ गए आप इतने सालों में बदलने के बाद, तो ये था कि देखिए न्यू ऑफिशल्स देयर, न्यू जेलर्स देयर, वो नहीं पहचानेंगे, बहुत पुरानी बात हो गई है। हमने कहा हमको नॉन पाकिस्तानी प्रिजनर्स आपके पास जो भी हैं वो जहाँ रखे हैं हमको सिर्फ दिखा दीजिए अपनी तस्वीर, क्योंकि हो सकता है कि आप देना चाहते हैं वापस हमें मगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं, हम पहचानेंगे, हमको इसलिए भेजिए आप। फिर भेजा, बस जी बैठ जाइए, चाय पीजिए, थैंक यू, जाइए। हमको तो आपने कोई एक भी सेल में नहीं जाने दिया। डिड यू मीट एनी प्रिजनर्स? कहाँ से मिलेंगे, जाने नहीं है। तो आप किससे मिले फिर? बस जेलर साहब से मिले, किसी ने चाय पिलाई, किसी ने शरबत पिलाया, और उसके बाद थैंक यू करके भेज दिया वापस। वी वर आउट फॉर 15 days। मतलब वो तो टॉर्चर हो गया हमारे लिए, सफोकेशन होने लगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो कुछ मकसद ही नहीं हल हो रहा है ना। फिर आइए तो क्या, नहीं 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 नहीं, फिर आप अपना जो करो, आपकी ट्रिप पूरी हो गई, ख़त्म हो गई। तो हमारे को शिकायत वर्ड भी, मुझे तो कोई भी भारी शब्द कहने में शर्म आती है एक तरह से। मेरी माँ तो हमेशा कहती थी डेस्टिनी वॉक्स अहेड ऑफ यू, which is true. Yeah, but you didn't surrender to that destiny. You see, you could have in 1971 said, all right, my husband's never coming home. You did not surrender. You tried to contest what destiny seemed to have in store for you. I think a lot of our viewers would want to know what kept you going. Love is one part of it, and it explains a lot. लेकिन year after year, 50 साल के बाद भी आप कुछ महीने पहले तक RTI फाइल कर रही है। इसको हम हिम्मत कहें, इसको मोहब्बत कहें, प्यार कहें, स्टबर्ननेस कहें, क्या कहें? बेवकूफ़ी कहें। बेवकूफ़ी नहीं, मेरे लिए नहीं है। नहीं, आपने वर्ड यूज़ किया, मैंने नहीं, मैंने कहा वो शायद भूल रही हैं शब्द, आप कहना नहीं चाह रही हैं, इसलिए मैं आपके मुंह में डाल रही थी। लोगों ने कहते हैं, लोगों ने कहा होंगे, नहीं मेरे मुंह पे ईश्वर की दया से किसी ने, nobody has been harsh to me or unkind to me। मेरे पास तरफ से, मेरे ऊपर कभी किसी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, ऐसा करो वैसा करो, कैसे जियो। हमने कहा जी लेंगे, जैसा भी है जी लेंगे। एंड फॉर्चुनेटली व्हेन आई वर्कड इन JNU आई गॉट अकोमोडेशन एंड आई वाज इन अ एनवायरनमेंट, ठीक है, अपना रहने की जगह है, खाने का है इंतज़ाम। तो उस तरह से हम, एंड आई वॉज यंग, सो जो उस समय के मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स थे, आई वॉज अ फ्यू ईयर्स में बी ओल्डर, सो हैड कंपनी विद देम। तो उस तरह की मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने टीवी पे और रेडियो पे ही जो बातें करी, मगर अपने जीवन की बातें नहीं करी किसी के साथ, बिकॉज वन न्यू कि किसी को रोज़ रोज़ अपना दुखड़ा सुनाने से कोई अपना नहीं बन जाता है। बी फेयर टू योर सेल्फ, एवरीबडी। आई मीन, इट्स नॉट दैट आई डिडंट हैव
very, very extreme moments in life. I did have, but they were all for myself. And But that's what I was going to ask you. That did you not feel that you owed yourself happiness? What would have got me the happiness? I don't know. I also, number one, ये जो कहते हैं ना कि ऐसा तो होता ही है, अब चलने दो, जीवन चलने दो. तो जो जीवन चलने का काम तो चल रहा था जी, मगर आप कहिए कि नहीं नहीं अब खुश हो जाओ. मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैंने दुख में ही जीवन काटा है, मगर हाँ एक जो स्पेशल खुशी होती है जिसको जी, हाँ मे बी आई लॉस्ट आउट ऑन दैट. Did you ever think, because all these years you believed, or even now may believe, that your husband is alive, did you ever think that if I meet him, मैं सबसे पहले ये बात बोलूँगी? Did you must have, it, you know, at least in the early years when there was much more active hope, you must have thought, this is the first thing I'm going to say to him. I would have given him a slap. Why did you go? No, this is ये अभी reaction. ये तो light hearted अभी आप बोल रहे हैं. हाँ, जी. नहीं ये इस तरह की, you see I had to remain very sane for myself. मुझे मालूम था कि I'm not going back to my parents. I can't be a burden is not the right word. Parents. You wanted an independent life. हाँ, I mean one had to be self-sufficient. Self-sufficient. My in-laws के साइड से भी extremely nice people. सबसे पहले तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि तुम इलाहाबाद में हो, तुम्हारी गाड़ी तो अम्बाला में है. उन्होंने एक 2-wheeler अलॉट करवाया वहाँ से. ही वॉज द फर्स्ट बैच ऑफ सिविल सर्विसेज माय फादर इन लॉ. और वो स्कूटर को लेके आ गए मेरे घर तक. मैंने कहा बाबूजी मुझे चलाना नहीं आता. कहते अरे तुम साइकिल तो चलाती हो. हमने कहा हाँ साइकिल तो चलाती हूँ, स्कूटर तो नहीं आता. तो कहते रुक जाओ मुझे अपना टिकट पोस्टपोन करने दो, मैं सिखाऊंगा. एंड कैन यू बिलीव बरखा, कहते सुबह जल्दी उठना पड़ेगा. 5 बजे उठ के वो उंजेले में फिर मेरे को स्कूटर चलाते, तो मेरे स्कूटर के पीछे भाग के मुझे नहीं लगता इस तरह का प्यार कहिए, एक पारिवारिक प्यार और इस तरह का. इवन द इन लॉ एवरीबडी हैज बीन एक्सट्रीमली. पर आपने ये कभी नहीं सोचा कि मैं बैडमिंटन दोबारा शुरू करती हूँ? नहीं खेला. आई वॉज इन्वॉल्व्ड. आई वॉज गवर्नमेंट ऑब्जर्वर. खेलने वाला नहीं रहा बट बाकी सब कुछ क्या. मैं तो यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डायरेक्टर ही रही हूँ. तो स्पोर्ट्स का नॉट ओनली बैडमिंटन बट आई हैव टू लुक आफ्टर ऑल 15-16 गेम्स. सबका ही. नो आई मीन एज एन एक्टिव प्लेयर. नहीं वो उसके लिए सिर्फ bodily strength नहीं, दिल में भी जगह चाहिए. And your dil was occupied by the singular mission of finding your husband. Now tell me, you come back disappointed from Pakistan in 2007. उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता. यही है कि जब कोई थोड़ी सी खबर आती है तो लगता है अच्छा इस पे भी काम करके देखें. 2007 के बाद तो कुछ खास हुआ नहीं. Yeah. So were you struck by the irony, जो आज भी राजनीति में कई बारी डिबेट होता है, the decision by Indira Gandhi to release more than 90,000 Pakistani prisoners of war, right? Even till today, there are people who say that was a fatal error, although it followed the code of war, but it was a fatal negotiating error. We could have perhaps pushed a negotiated settlement on Kashmir, और बहुत कुछ हो सकता था. जब आप उस फैक्ट को सोचते हैं कि मिसेस गांधी ने 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर लौटा दिए, and these 54 including your husband never came back home, that irony, how do you look at that irony? ताज्जुब होता है. 93 मतलब ये तो इंटरनेशनल फेलियर है मैं कहूँगी. हम इतने जीत के खुशी में, और जीत किसकी? बांग्लादेश बनाने की जीत. मैं बिल्कुल अपोलिटिकल बात करूं कि मुझे उन चीज़ों से क्या फ़ायदा हुआ. मेरे तो नुकसान हुआ जीवन में इन अ वे. जी हमने बांग्लादेश बना दिया, चलो आप इंडिपेंडेंट हो गए. पाकिस्तान भी आजकल इंडिपेंडेंस डे मनाता है. वो किस चीज़ से इंडिपेंडेंट हो गया मुझे नहीं पता, अभी तक समझ में नहीं आता. मगर मुझे ये चीज़ें ज़्यादा ईश्वर की वजह से समझ में ही नहीं आती हैं. मुझे ये नहीं समझ में आता कि 93,000 के लिए जब हाँ, एंड आई वॉज यूज टू बी एंड आई ऑलवेज एडमायर्ड हर एज ए लेडी कि भाई एक महिला क्या कितना कर सकती है. आपकी एक तस्वीर भी है उनके साथ, मैंने देखी वो तस्वीर. वो मैंने माला पहनाया और वो सब किया. इलाहाबाद वो क्या हो रहा है उस तस्वीर? बैडमिंटन के मैचेस थे कुछ और शी हैड कम टू इलाहाबाद. दिस वाज आई थिंक 1969 या 68 की बात है. जी
सो आई वॉज पिनिंग समथिंग टू हर एंड वो तस्वीर है. एंड आई वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ हर्स. अगर वो इलाहाबाद आती थी और यहाँ से उड़ी भी नहीं होंगी तब तक मैं जाके कुर्सी पकड़ के बैठ जाती थी. बट बिकॉज आई थॉट शी वॉज अ ग्रेट लेडी. आई मीन आई स्टिल फील शी वॉज अ ग्रेट लेडी. मगर ये फॉल्ट एक कुछ डिप्लोमेसी होती है, कुछ क्या क्या होता है मुझे नहीं समझ में आता. किसकी जीत, किसकी हार, किससे किसको फ़ायदा, उससे किसको फ़ायदा, ये इस कंट्री इसका साथ दे रहा है, उसका दे रहा है, ये सब चीज़ें होती होंगी. वही डिटर्मिन करता है सपोज द होल सिस्टम. मगर आप 93,000 को छोड़ने के पहले हमारे आर्मी के भी चीफ रहे होंगे, एयरफोर्स के भी चीफ रहे होंगे, नेवी का तो खैर वो एक रोल था, मगर उसमें मिसिंग. आपने कोशिश भी नहीं करी कि भाई हमारे सब आ गए. आप घर के अंदर घुसते हो, आपके बच्चे होते हैं, आप गाड़ी में अपने पेट्स को बैठा के ले जा, अरे भाई अपना वो टॉमी आया कि नहीं, सब आ गए ना, दरवाज़ा बंद कर लो. इतना तो सब करते हो. आपने 93 छोड़ने के पहले इंश्योर कर रहा था आपने कि आपके सारे लोग वापस आए कि नहीं आए. जी. जो नहीं पक्का पता है नहीं जीवित है, मगर उसके अलावा भी तो होते होंगे. आपने कैसे कर दिया? आर्मी वालों, आर्मी और एयरफोर्स के चीफ्स को क्या कंसल्ट भी नहीं किया गया? हाउ कैन, I don't know who will answer this question, and she's unfortunately not alive to answer that question. And the debate rages on about whether that was a fatal error or not. जब मैं आपको देखती हूँ, जब भी हम बहुत अरसे बाद आज मिल रहे हैं, पर every time I have met you, you have a very calm presence about you. और वो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि अगर मुझे आपकी जैसे एक तरह से ज़िंदगी जीनी पड़ती तो I would be perennially agitated, I would be perennially cynical, angry. आप में मुझे गुस्सा नज़र नहीं आता. शायद आप छुपाती हैं कि है ही नहीं, कि उसको आपने कहीं और चैनल कर दिया. गुस्से से फ़ायदा क्या होता है? यू योरसेल्फ आप अंदर ही अंदर और घुलते रहते हो. जी. गुस्सा नहीं, मैं तो तरीके ढूंढती रहती हूँ, और क्या तरीका है और क्या हो सकता है. कई बार सोचती हूँ कि अगर इफ़ इज़ रियली नॉट देयर, और सब कहते हैं कि पता नहीं आफ्टर मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं. हमने कहा अगर उसका कोई तरीका हो तो मैं भी छलांग लगाती हूँ, देखूँ शायद भेंट हो जाए. और फिर ये लगता है कि अगर इफ इज देयर, हम कहेंगे अरे हमने तो ऐसे ही छलांग लगा ली, बंदा तो बैठा हुआ है. You see, you're able to laugh about this. तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, किस तरह से मिलूँ. जी. किसी तरह से मिलूँ, इस जीवन में या अगले जीवन में. फिर सवाल जवाब करूँगी, क्या करूँ, मेरे को नहीं समझ में आता. मुझे आप बताइए कि who do you blame, if you blame anyone, for the situation that your life threw you in? अपने जीवन के लिए दूसरे को कैसे ब्लेम नहीं, करो? जैसे आपको लगा कि ये एक गलती थी 93,000 प्रिजनर्स वापस भेजने की, आपको गुस्सा है कि मिसिंग लिस्ट में आपके हस्बैंड का नाम है और किल्ड इन एक्शन भी उनको डिक्लेयर साइमल्टेनियसली. आपको लगता है कि 2007 ये जो जनरल मुशर्रफ ने एक तामझाम के साथ आप लोगों को कहा कि कम सी द जेल्स, एक्चुअली was that a dishonest offer in retrospect? Yeah. आपको पता है 3 दिन के बाद वहाँ के पेपर में छप गया कि हमने सारे जेल्स देख लिए, इंडियन तो हिंदुस्तानी तो कोई नहीं है. 3 दिन में आपके 76-78 आपके जेल्स हैं, डिटेंशन सेंटर्स हैं, तरह तरह की चीज़ें. आपने 3 दिन में 50, 30 साल, 40 साल का रिकॉर्ड देख लिया. और आपने खबर भी कर दी कि साहब हमने सब चेक कर लिया. मतलब अगर डिसऑनेस्टी हर तरफ से चल रही है तो जीत किसकी हो सकती है? हम जैसों की तो नहीं हो सकती. So you think he was just doing it for show? हाँ, और क्या. अब वो उनकी क्या मजबूरी है? अच्छा, आपने कह दिया कि आ जाओ, तो आप ये क्यों अनाउंस कर रहे हो कि हमने सारे जेल्स चेक कर लिए? ये कहाँ गए कराची से जो मेजर सूरी का लिखते हैं कि वी आर 20 ऑफिसर्स हुआ? व्हाट हैपेंड टू देम? वेयर आर दोज 20 ऑफिसर्स? क्या उसका जवाब कौन देगा? आपने उनकी हैंडराइटिंग भी चेक कर ली. व्हाट सिस्टम डिड वी, हमने क्या कोशिश क्या करी? आज हमको ये तो सरकार बता दे. आपके लोग बदल गए, सरकारें बदल गई हैं, फाइलें तो होंगी ना कहीं. अब तो वो 30 साल का वो भी निकल गया होगा. अब खोल के. डू यू स्टिल बिलीव दैट ही मे बी समवेयर? I really, Barkha, after 50 years, I can't say, and I will admit on 2 occasions at least. ये मुझे लगा जब हम लाहौर के जेल में पहली 2007 में जब गए और वहाँ पे जो लोगों की हालत देखी,
वो देख के मेरे मन में एक बार ज़रूर ये ख्याल आया कि आई विश ही डिडंट हैव टू लिव दिस लॉन्ग टू गो थ्रू दिस. जिस तरह से पैर में चेन बांध के, आई मीन दे वर नॉट इंडियन प्रिजनर्स, बट वो मीटिंग डे था, जो सिविल के भी प्रिजनर्स थे, 2 जनों के चेन पैर में बांध के आप क्या फ़ायदा इस जीवन का. You don't wish that for someone you love. नहीं. Is there a day when you said, now I close this file in my heart? कोई ऐसा दिन आया? नहीं, देखो क्लोज करो या ओपन करो, बात तो एक ही है. बात है तो एक ही है. हम क्लोज करने के बाद क्या करने वाले हैं? कुछ नया तो करने नहीं वाले. जो चल रहा है जीवन जितना है. But are you still looking? Look where? For clues, for signs, कि कुछ पता लगे कि हुआ क्या? हाँ, वही तो प्रयत्न. The not knowing. Not knowing is the biggest. एक किसी साइकोलॉजिस्ट ने, आई एम फॉरगेटिंग दैट लेडीज नेम, बड़ा लिखा है, नॉट नोइंग इज मोर पेनफुल देन नोइंग. Yes, always. Because you are always neither here nor there. Gee. We started this conversation talking about love, and I want to end it on that note. What we haven't spoken about is how you met him. I read, I think in a book, that he drove into your life in an olive green Fiat. Tell us a little bit more about Vijay Tambay. हमारी तो अरेंज मैरिज थी भाई. फिर भी तो प्यार इतना एक अरेंज मैरिज में, आई मीन यू आर द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर अरेंज मैरिजेस. बिल्कुल होता है. सब तरफ के लोग रहते हैं, दोनों परिवार के, वो सब सोच समझ के करते हैं. नहीं, इट वाज, I don't know, I always had a very inferiority complex about myself. क्यों? था वो ज़माना था. बैडमिंटन चैंपियन और अर्जुना अवॉर्डी और बैडमिंटन चैंपियन वगैरह का कोई उस ज़माने में इतना कोई वाहवाह नहीं था जैसे अब होता है. उस ज़माने में तो अरे बेचारी काली है, अरे बेचारी की नाक नक्शा भी ऐसा, वो चीज़ें ज़्यादा थी. आई एम ऑफ दैट ईरा. तो ये था कि जो माँ बाप कहें मान जाओ और वो कर लो. हाँ, ये ज़रूर था कि देन ये बातें हो रही होंगी. माई मदर सेड ही इज़ इन द एयरफोर्स. तो हमने कहा मम्मी हमारे दोनों भाई आर्मी में हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है. उन्होंने कहा ठीक है. तो बस मिले, दिल्ली में ही भेंट हुई, एंड आई वाज स्टिल प्लेइंग मैचेस एंड ऑल. तो रुड़की में हुआ. मम्मी ने कहा कि नहीं, वो खेलो मत, सीधे चलो, वैसे थक पक के आओगी. तो हमने, मम्मी एक बहाना तो रहेगा ना, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो हम कहेंगे हम तो खेलने गए थे, हम अपनी शक्ल दिखाने थोड़ी गए थे वहाँ पे किसी को. आप भी तो रिजेक्ट कर सकती थी उनको. इतनी हिम्मत ही नहीं थी. So anyway, fortunately I found him to be a very nice person, very gentle. और मतलब सब लोग कहते थे कभी गुस्सा नहीं आता. हमने कहा हमको कोई खामी ही नहीं दिखती बंदे में, क्या करें. जी, बहुत शरीफ जिसको कहो, एंड वेरी क्वालिफाइड. I mean, he was in America for 1 year, leading a delegation of 5-6 pilots. Then he was in Russia for 6 months. पढ़ाई में होशियार, सब कुछ, everything was there. मतलब हमको कोई कारण ही नहीं मिला. शायद मैंने कहीं पढ़ा कि his last words to you were आता हूँ, कि मैं जा रहा हूँ, मैं आता हूँ वापस. And that day never came. Never came. That smile on your face today, you have smiled through this conversation. Where does it come from? That खुशी इस चीज़ की है कि अगर मैंने शादी करी तो उस व्यक्ति से करी. मतलब ठीक है, मेरे लिए वो 1.5 साल भी जीवन काटने के लिए काफ़ी साबित हो गए. मैं यही कहने वाली थी that I think what you experienced in that 1.5 years, people sometimes spend a lifetime never knowing. तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है. Full salutations to your courage, Damayanti ji. Thank you. And thank you for sharing your life story with us on Inside Out. God bless you. God bless you, ma'am. Thank you. Thank you.